Good morning, class 9 students. This is the sixth topic of Unit 1, and Unit 1 will be finished today. So, this is this is also a short topic, as like chapter number 5th. Previous day we uh, studied did have the women revolution. That was chapter number 5, and it is chapter 6 of Unit 1. Unit 1, chapter 6. And this is all end here. Unit 1 is finished today. So let's start. The revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the book they read? It is possible that some kind of politics change clothes people wear, they wear, the language they speak, or books they read. Yes, many of things depend on government, like as education policy and as like books also. Many topics or books the government want to be prepared in particular country, or the students have to read it, and more many things. But we talk about in French Revolution in 18th century. What was behind that? The years following us 1789 is France saw many some such changes in the lives of women, men, and children. The years after 1789, the France saw many changes in the life of everyone, like women, and childrens also. The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. Yes, this is very important to explain. Uh, the revolutionary government also take the action to pass law for what they would translate the ideals of liberty, what the people do for French Revolution, the ideals of liberty for everything, declaration of rights and women later on, and the right to vote, suffrage, and property right, and all the matters behind the women, like education, their marriage act, their divorce act, and their rights, and the activation of women's in publicly into politics also, and released journals or newspapers, organizing movements of women's and many things. These were the ideals behind the government want to pass law. They would translate these ideals and also equality into everyday practice. That in that time the French society was divided into three estates, and you know about the discrimination and differences behind the peoples. But now ec- government want to emphasize on equality in everyday practice on the daily basis. In India, equality on daily basis is not about sure to say that all peoples are treated equally. In present scenario in 2020, we are not equal, and there is no equality into the everyday practice. Okay, one important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 89 was the abolition of censorship. If I am talking very seriously about abolition of censorship, India in 2020 has a censorship on press. Press is not free till date in India. Press is not free. Yes, free indirectly. Indirectly is free, but directly is not free. They don't criticize, and they don't dare to criticize present government and their policies and the ministers, because they have a fear to lose their job. Not peoples, even administrators and judiciary in many other department, and the people have the make the fear of ED, enforcement department, CBI, and many other things.
So, abolition of censorship. What is censorship? Censorship to keep eye on everything what you act what you do in daily lives, what your activities, behind the policies of government, behind the activities of other things, behind the activity of what you write, what you speak, and everything. So people want the abolition of censorship. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published, performed only after they had been approved by the censorship of the king. That is what I explained you in my previous lines. All the things, the cultural activities, written material, books, newspaper, play could be published or performed only after they had been approved by the census of the king. राजा जब तक के इसको ये नहीं लगेगा ये चीज़ ठीक है, हाँ अब इसको तुम कर सकते हो, तब तक वो चीज़ पब्लिश नहीं हो सकती थी। आज भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आज की गवर्नमेंट और उनके लीडर्स को लेकर तारीफ़ करती हैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। यहाँ तक कि अब तो बॉलीवुड भी बढ़ गया है। इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं और ये सिर्फ कब होता है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को काम पे लगा देते हैं पैसे की हेल्प से, उन चीज़ों से कि सिर्फ आपके लिए बोलें। और हमें लगता है कंट्री में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। अब जब राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन्स का जब प्रोक्लेम्ड हुआ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला जो कि सेंसरशिप में नहीं आएगा, और एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। एक्सप्रेशन, आप क्या व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भाषा, अपने विचार, अपनी चीज़ें, नेचुरल राइट की तरह कि आप इस देश में पैदा होंगे तो ये आपको मिलेंगे ही। आज हमारी कंट्री में ऐसे हालात नहीं, 2020 में अगर बात करें तो जेल में डाल दिया जाता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे आप तो ये आपको देशद्रोही, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया बोल दिया जाएगा, कांग्रेस का चमचा बोल दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिड इन द कंट्री साइड। अब न्यूज़पेपर्स की बात करें, पैम्पलेट, बुक्स और प्रिंटेड जो मटेरियल है उसकी बात करें, अब वो बहुत फ्लडेड द टाउन, मतलब अब आपको भरे हुए मिलते हैं हर जगह फ्रांस में। जहाँ पे वो ट्रैवल करते हुए कंट्री साइड यानी जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे वो अब ट्रैवल कर रही हैं। अब दूर दूर तक इन चीज़ों की पहुँच से लोग मतलब ईज एक्सेस कर पा रहे हैं। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस दैट इवेंट एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन फ्रांस। और उसमें हर एक तरह की चीज़ें डिस्क्राइब की जाती थी, डिस्कस की जाती थी कि कौन से इवेंट चेंज हो रहे हैं फ्रांस में। अगर मैं इस लाइन को लेके बात करूं, क्या आपको लगता है इंडिया में जो चेंज हो रहे हैं वो आप पढ़ पाते हैं? क्या पढ़ते हैं इंडिया में जो हो रहा है, इवेंट्स टेक्स प्लेस हो रहे हैं? फ्रांस में वो चीज़ 1789 के बाद से शुरू हो रही थी। आप 2020 में क्या इंडिया के लिए चीज़ देखते हैं? आप कंट्री के लिए सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जागरूक बनिए, आप बहुत सारी चीज़ इंडिया के लिए कर देंगे। आप इन गंवार नेताओं के पल्ले इस देश को मत पड़ने दीजिए। आप पढ़िए, लिखिए, जो सोसाइटी को ज़रूरत है, जो चीज़ें एक्टिविटी होने की ज़रूरत है उस पर फोकस कीजिए और अपनी बेटर सोसाइटी को बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग ये आप कर सकते हैं जैसा कि फ्रांस में लोगों ने किया। वरना एक दिन लुई 16 की तरह यहाँ की जनता भी परेशान होगी, किसी को कहीं ना कहीं फांसी भी लटका देगी, परेशान हो जाएंगे ये लोग भी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस, मतलब अपोज व्यू। अगर आपके व्यू कुछ अलग है, मान लीजिए मोदी जी ने कुछ कहा और आपने उसके अपोजिट कुछ बोल दिया, तो उसको भी एक्सप्रेस करने का तरीका होना चाहिए, बट आज नहीं है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा है इंडिया में है, बट जो अब तक बहुत से लोग मरे हैं, जिनको किडनैप किया गया, डरा दिया गया, धमका दिया गया, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, उसकी बात की जाए तो वो नेचुरली नहीं हो रहा है ना। वो तो डराया धमकाया जा रहा है, आपके केसेस को ऊपर निकाल के, पैसे की दम दिखा के, हर एक चीज़ करके। अरे डिमोनेटाइजेशन के पास पैसा है भाई, बहुत पैसा है। आपको तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, डिमोनेटाइजेशन जैसा घोटाला इस देश में कभी हुआ ही नहीं। ओके, ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। हर किसी को अपनी साइड और अपनी चीज़ों कहने का और कन्विंस करने का हक है प्रिंट के जरिए। प्ले और सॉन्ग्स ऑफ फेस्टिव पोजीशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब प्ले के जरिए जो नाटक होते हैं, सॉन्ग्स के जरिए, बहुत सारे त्यौहार के जरिए अब इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट किया जाता था। आपने इंडिया में देख लो, कोई मूवी रिलीज होनी होती है तो कभी राजपूत भड़क जाते हैं, कभी पद्मावत को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। यहाँ सब ऐसे ही चलता है इंडिया में। कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे सब एक तरह का हेट स्पीच होने लगता है। सड़क 2 आएगी तो उसका बहिष्कार कर देंगे। वो तो देखी तब भी जानी है बेटा। हॉटस्टार जितने लोगों ने ले लिया है वो तो देखेंगे ही देखेंगे उसको, और बहुत से लोग देखते हैं।
ये तो सिर्फ एक ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की वजह से पूरा बॉलीवुड जिम्मेदार है, ऐसा थोड़ी होता है। क्या उन लोगों की डेथ पे लो आप न्यूज़ चैनल ने कभी दिखाया जो 20 हमारे सोल्जर शहीद हुए थे गलवान घाटी में जून में? क्या उन सोल्जर्स की फैमिली को लेके सीबीआई जांच या उनके लिए कभी आपने इतना बोला जितना आप टीवी पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए? मैं ये नहीं कहता हूँ आप उसके लिए मत लगाइए, उसके लिए लगाइए, उसकी बोलने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि वो खुद भी पैसा बहुत कमा रहा था और उसके फादर्स लोग एक्टिव हैं, सारी चीज़ें। लेकिन क्या ये 20 सोल्जर्स हमारे कंट्री के लिए सेलिब्रिटी नहीं है बेटा? जो गलवान घाटी में मरे हैं जवान, क्या वो हमारे हीरो नहीं है? क्या उन्होंने जान नहीं गंवाई? क्या मीडिया इसके बारे में कभी बात करती है पिछले 3 महीने से? लेकिन सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट, अभी कुछ दिन पहले खबर पड़ी कि एक महिला है जिनके पति कैप्टन से रिटायर थे, 11 साल पहले उनकी बॉडी मिली नहीं, गायब हो गए। 11 साल बाद आज उनको पेंशन और वो जो पैसे थे वो मिले हैं 11 साल बाद। तो 11 साल तक वो उनकी फैमिली बच्चे कैसे रहे हों, क्या उस पर आपने कभी ध्यान दिया? यही तो चीज़ है बच्चों, आपको क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी है, किस चीज़ पे बोलना है, नहीं बोलना है। हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत, बस एक ही माँ का बेटा था वो, और जो 20 जवान मर रहे हैं या डेली मरते हैं वो किसी जवान के बेटे नहीं हैं। उनके लिए तो कभी इतनी कैंपेनिंग नहीं की जाती है मेरे हिसाब से। सोचिए ना, कितना एक गैम्बलर टाइप गेम है मीडिया का, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना। अब रिया चक्रवर्ती को कह देना कि लड़कियां ऐसी होती हैं, पैसे के लिए मार दिया, अब जो हुआ सच आ ही जाएगा सामने। सुशांत सिंह राजपूत कोई बच्चा नहीं था कि वो रिया चक्रवर्ती के साथ रह रहा था या नहीं रह रहा था। वो अपने आपस के फैसले से चीज़ें आगे लेके आगे बढ़ा रहे थे। आप बंद कीजिए एक तरफ से एक्यूज करना किसी चीज़ को, लड़कियों को इस बहाने टारगेट करना, कई बार लड़कों को टारगेट करना, गलत है ये सब। This was one way they could grasp and identify ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about in length in text which only a handful of educated people could read. अब होता क्या था, ये चीज़ तब तो आइडेंटिफाई कर ली गई, लिबर्टी के बारे में, जस्टिस के बारे में, पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में कौन कैसे सोचता है, उनके बारे में लिखा जाना बड़े बड़े लेंथ में। लेकिन जो पढ़े लिखे पीपल थे सिर्फ वही पढ़ पा रहे थे अभी तक। तो वो उस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया जाता है। ये पिक्चर्स हैं, ये काफ़ी कुछ कहती हैं। देखिए, ये मैराइट एड्रेसिंग द पीपल, ये एड्रेस कर रहा है पीपल्स को खड़ा होके। ये इस तरह की पेंटिंग बनाई है फ्रांस में, जो उस तरह माहौल था वो दिख रहा है आपको। तो ये नेपोलियन की पेंटिंग है, ये एल्प्स को ना पार कर रहा है। एक्चुअली क्या है, एल्प्स जो है वो यूरोप में बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है बेटा, ठीक है, और इसको पार करना खतरे से खाली नहीं है। यूरोप में है, पूरा यूरोप एल्प से घिरा हुआ है, ठीक। तो नेपोलियन ने इसको क्रॉस किया था, ये पेंटिंग डेविड ने बनाई है। तो कहते हैं इससे पहले आल्प्स को किसी ने क्रॉस करके अदर कंट्रीज़ पर अटैक नहीं किया था, बट नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने इसी आल्प्स की चढ़ाई को लेके बोला था नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो कहता था कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरी डिक्शनरी में नथिंग जैसी चीज़ है, इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है ही नहीं। ये नेपोलियन के क्विट हैं जो कई बार यूज़ होते हैं, और वो चढ़ भी गया था, पार किया। आगे देखिए, इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। आपने याद देखा होगा पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टरी का रूल था वो फिनिश हो गया, वो भी आपस में बढ़ते रहे। तो डायरेक्टरी इतनी इनसफिशिएंट थी या एफिशिएंट थी कि डिक्टेटर रूल को जो है फिर रास्ता मिल गया, और डिक्टेटर ने 10 साल बाद 1804 में नेपोलियन एज अ डिक्टेटर ही आया वो फ्रांस में। उसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया फ्रांस का, यानी अगेन मोनार्की, नॉट डेमोक्रेटिक लीडर, एम्परर। ही सेट आउट टू कॉन्क्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज एंड डिसअपोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएट ए किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। उसने आसपास कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं यूरोपियन की, सबको कॉन्क्योर कर लिया, जीत लिया, और जो डायनेस्टीज़ थी उनको वहाँ से हटा दिया। जहाँ जहाँ जो भी डायनेस्टी के लोग थे अपने अपने तरीके से किंगडम क्रिएट किए, उसने राज्य बनाए और अपनी फैमिली के लोगों को वहाँ पे बैठा दिया। ये तो अमित शाह का मेरे को बड़ा भाई लगता है। ओके, नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने अपने आप को एक मॉडर्नाइजर की तरह देखा, मतलब मैं आधुनिक करता हूँ, मैं नई चीज़ें लेके आऊँगा, यूरोप को मैं दे सकता हूँ वो सारी चीज़ें।
ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये चीज़ उसने अच्छी दी है, आज तक लागू है दुनिया में, उसी ने दी थी। ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, उसी ने दिया है। ये जो आप किलोग्राम, केजी और मीटर, किलोग्राम, ये सब चीज़ें देखते हैं, एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, ये सब नेपोलियन ने उस टाइम किए थे 1804 में। आप सोच सकते हैं नेपोलियन जो उस टाइम फ्रांस में चेंज की, पूरी दुनिया में लागू है, आज भी लागू है। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, कई लोगों ने उसे एक आज़ादी वाले मसीहा की तरह देखा, वो आएगा लोगों को आज़ाद कर देगा हर एक चीज़ से। बट सुन द नेपोलियन का आर्मीज केम टू व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, बट बहुत जल्दी लोगों को लगने लग गया कि नेपोलियन की जो आर्मी है अब वो एक इन्वेडिंग फोर्स की तरह है। इन्वेडिंग मतलब आक्रमण, अटैकिंग फोर्स की तरह वो आते हैं, कब्जा करते हैं और यहाँ पे अपना नाम करने लगते हैं। ही वॉज फाइनली डिफीटेड वाटरलू 1815, और कुछ 11 ईयर्स के बाद वाटरलू की एक लड़ाई हुई थी इंग्लैंड के साथ, नेपोलियन उसमें हार गया था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कई बार वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया। उसने जो इंग्लैंड की नेवी थी, नेवी उस टाइम इंग्लैंड की सबसे पावरफुल थी दुनिया में, उसको ना उसने हल्का समझ लिया और यही उसकी गलती थी, इसलिए वो हारा भी। ओके, मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। अब जो भी उसने मेजर्स रेवोल्यूशनरी आइडिया लिबर्टी के और मॉडर्न लॉ के लाए थे यूरोप में, उनका अपना एक प्रभाव था लोगों पे नेपोलियन की डेथ के बाद भी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी हैड एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर लिबर्टी की बात करें, आज़ादी की बात करें और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब एक विरासत थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो हमें दुनिया को मिले, दुनिया ने जाना इस चीज़ से और दुनिया ने कि हर एक देश ने इसको अपने लागू किया, लिबर्टी को और राइट्स को, डेमोक्रेटिक राइट्स को। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम, और ये सारी की सारी चीज़ें मतलब फैलती चली गई फ्रांस में, और फ्रांस से फिर रेस्ट ऑफ यूरोप जो अदर कंट्रीज़ हैं 19th सेंचुरी में, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था। अब आप जानते हैं फ्यूडल सिस्टम वही ज़मींदारी वाला सिस्टम, तो वहाँ पे लोगों ने उन चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया और इस तरह की चीज़ों के चेंजिंग वहाँ पे शुरू कर दिए। were abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. जहाँ जहाँ कॉलोनाइज्ड पीपल थे, जैसे इंडिया था, श्रीलंका था, बहुत सारी जगह ये चीज़ें थी, ये आइडिया ऑफ फ्रीडम वो लेके आए, सब ने फ्रांस से सीखा और अपने आप को उस चीज़ से जोड़ने लगे, बॉन्डेज टू क्रिएट एन सॉवरेन नेशनल स्टेट, ताकि वो अपना खुद का एक नेशनल स्टेट क्रिएट कर सकें। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। टीपू सुल्तान उस टाइम पे और राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय बंगाल में थे, ये दो लोग हैं जिन्होंने अपने आइडिया को जो है लिया कहाँ से, रिवोल्यूशनरी फ्रांस से, राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में, आज़ादी के बारे में। ये बॉक्स है जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में कहता है, वो यूरोप गए थे और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसकी चीज़ों को इमेजिन किया और देखा है कि वो इंग्लैंड जा रहे हैं, केप टाउन में उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो इस तरह के ट्री कलर्स को वहाँ फहरा रहे हैं, तो वो नेशन स्टेट की जो मतलब क्रिएशन है उसको कर रहे हैं वहाँ से। और राजा राम मोहन रॉय बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे, आपने 8th क्लास में और 7th क्लास में ही पढ़ा है उनके बारे में। ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल। ओके, तो राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, ये चीज़ आप समझ लें, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाई हमारे इंडिया में बंगाल के थ्रू कि लोग जागरूक हुए, जाना समझा, सती प्रथा से लेके हर एक चीज़ बैन की, और कहते हैं कि 12 to 17 भाषाएं उन्हें आती थी, बहुत अच्छे घर से थे, रईस घर से थे, बट उन्होंने इंडिया की अवेकनिंग के लिए काम किया। चाहते तो अच्छी लाइफ जी सकते थे, बट वो उन्हें नहीं पसंद आई, वो कंट्री के लिए करना चाहते थे। ओके, आप लोगों में से कितने लोगों में भावना है देखते हैं। ओके क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट फर्स्ट एंड दीज आर द क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट नोट्स आपको उस तरह से तैयार करने हैं जो हम आपको बताते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स अब मैं खुद ही आपको करवाने के लिए कहूँगा और नोट्स की तरह भेज सकता हूँ, बाकी आप अपनी तैयारी पूरी रखें। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से तैयारी करते रहें अपने फ्री टेस्ट 1 के लिए, और जो कोर्स है आपका वो रेगुलरली चलता रहेगा। अच्छे से क्लास लें, जो लोग नहीं ले रहे हैं वो भी लें, और ध्यान रखें। थैंक यू।